All right. So we were discussing phonetics. In phonetics, we had discussed the production of consonant sounds, and uh, there were a few other things about consonant sounds. उनको देख लेते हैं, फिर हम वावल साउंड्स की तरफ जो है वो आ जाते हैं. Airstream mechanism. So we have discussed that it all depends upon air that comes from our lungs. So all the sounds are produced with the help of this air. ठीक है. तो एयर स्ट्रीम जो हमारे पास होती है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी साउंड के प्रोडक्शन के लिए, तो उसके लिए बेसिकली हमारे पास टू मैकेनिज़्म होते हैं. ठीक है. जो अब तक हम मैकेनिज़्म इस्तेमाल करते रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर रहे थे कि जो एयर हमारे लंग्स के अंदर थी, वी पुश्ड इट आउट थ्रू आवर माउथ. ठीक है. सो यहाँ से एयर स्ट्रीम स्टार्ट होती है, हमारे माउथ में आती है, और माउथ से बाहर की तरफ जो है हम उसे धकेल देते हैं, और उसकी वजह से साउंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं. इस तरह की जो एयर स्ट्रीम होती है, दैट इज़ कॉल्ड एग्रेसिव एयर स्ट्रीम. And the sounds that are produced with the help of this airstream, they are also called aggressive sounds. So all the sounds in English that we have looked so far, whether they are consonants or vowels, they are produced with the help of this type of airstream. के लंग्स के ज़रिए हमारी जो एयर स्ट्रीम है वो स्टार्ट होती है और बाहर की तरफ आती है. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एग्रेसिव एयर स्ट्रीम. तो जितने भी कॉम्पोनेंट्स हमने डिस्कस किए हैं, तो उन सारों में यही प्रोसेस हमारे पास इस्तेमाल हो रहा था. ठीक है. द सेकेंड मैकेनिज्म विच इज़ नॉट दैट कॉमन इज कॉल्ड ingressive mechanism or ingressive airstream. So it is opposite to aggressive mechanism. Ingressive airstream में क्या होता है कि we use the body of air which is present in our mouth. ठीक है. हमारे मुंह के अंदर जो एयर मौजूद है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं, और ये जो एयर होती है, इंस्टेड ऑफ पुशिंग इट आउट, वी टेक इट इन और वी सक इट इन. ठीक है. तो जो एग्रेसिव एयर स्ट्रीम थी, तो उसमें हम एयर को बाहर की तरफ धकेल रहे थे. यहाँ पर क्या होता है कि माउथ के अंदर जो हमारी एयर मौजूद है, हम उसे अंदर की तरफ जो है वो ले जाते हैं, अंदर की तरफ हम उसे सक कर लेते हैं. ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड इनग्रेसिव एयर मैकेनिज्म, and it is used in very few languages around the world. So it's not that common as aggressive airstream. So all the sounds that we have in English are Urdu, and most of other languages like Arabic, all those sounds use aggressive airstream mechanism. Okay. Ingressive mechanism is used in a very few languages and very few sounds around the world. In Pakistan, there are only a couple of languages in which this ingressive mechanism is used. Which are they? Yes. Saraiki, yes, good. Okay. So which sounds of Saraiki use this ingressive mechanism? One is Saraiki and the other is Sindhi. ठीक है. इन दो लैंग्वेजेस के अंदर जो है ये मैकेनिज्म हमारे पास इस्तेमाल होता है, पाकिस्तान की अगर हम बात करें. सो इन विच साउंड्स डू यू थिंक दैट दिस ingressive mechanism is used?
यस, इट्स नॉट ब, बिकॉज ब या बी साउंड जो हमने डिस्कस की थी, सो दैट वाज एग्रेसिव एयर स्ट्रीम. सो इन बी, सो बी जो है उसके अंदर हम एग्रेसिव एयर स्ट्रीम ही इस्तेमाल कर रहे थे, जो अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है, ब जो उर्दू में इस्तेमाल होता है, अरेबिक में इस्तेमाल होता है. ठीक है. So instead of this burr sound in which we use aggressive mechanism, we have burr sound in Saraiki. And the symbol for that sound is, so if there are any Saraiki speakers, they would understand that when we say burr, we actually take air in instead of pushing it out. Okay? It's very difficult for the speakers of other languages to acquire such sound, ingressive sound, because they have never used such sound. Even in Pashto, all the sounds are aggressive sounds. So there is no ingressive sound in Pashto. That is why it becomes very difficult to produce this type of sound. So the difference between these two lies in the air stream. Otherwise, all the other things are same, because both the sound, as far as the place of articulation is concerned, both the sounds are bilabial. Manner of articulation, both the sounds are stops. Okay, and as far as voicing is concerned, so both the sounds are voiced. ठीक है. सो बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, सिर्फ फ़र्क किस चीज़ का है कि वेदर वी टेक एयर इन और वी पुश इट आउट. दैट इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू साउंड्स. What are other sounds that in which we use this ingressive mechanism? The, yes. So we have the sound in English, in Urdu as well. दाल की जो आवाज़ होती है, तो उसके लिए हमने डी, छोटा डी जो है वो सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया है. Here the ingressive sound is the. ठीक है. So can you perceive the difference? The. So जो वाहिद इनके अंदर डिफरेंस हमें नज़र आता है कि हम एयर को अंदर की तरफ जो है वो ले जा रहे हैं. एनी अदर साउंड? यस, वी हैड डिस्कस्ड ग साउंड इन इंग्लिश. ओके, गाफ वाली जो आवाज़ होती है उर्दू में. सो हियर वी हैव ग. ग. ठीक है. एनी वर्ड दैट स्टार्ट्स विद दिस साउंड? एनी वर्ड गाय के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं? यस. ठीक है. ओके. व्हाट्स द फोर्थ साउंड? Yes, any other sound that you have in your language? Yes. Okay. Yes. Yeah. For example, in any word, पैदा होने को जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. तो एक तो जीम साउंड है हमारे पास. सो जीम के अलावा ये जो है य साउंड है. ठीक है. तो ये जीम के लिए हमारे पास है और ये य के लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है. So these are two basic mechanisms which are used in the production of sounds. ठीक है. Although इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. फॉर एग्जांपल जो इंग्रेसिव
अच्छा, ये जो साउंड्स हैं दे आर आल्सो कॉल्ड इम्प्लोसिव्स. Remember terms which we use for different things, because जो टेस्ट के अंदर सारी बेसिकली जो है इंफॉर्मेशन बेस्ड ही होता है, तो जो टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल की जा रही हैं वो सारी आपके जहन के अंदर होनी चाहिए कि किस चीज़ के लिए कौन सी टर्म इस्तेमाल की जाती है. सो सच साउंड्स आर आल्सो कॉल्ड इम्प्लोसिव साउंड्स. तो जो इनग्रेसिव साउंड्स हैं उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. विल नॉट गो इनटू डिटेल्स. वन ऑफ द थिंग्स दैट वी कैन डिस्कस इज क्लिक्स. द क्लिकिंग साउंड्स. ठीक है. फॉर एग्जांपल क्लिक जो नेम है उससे ज़ाहिर होता है जो माउस की हमारे पास क्लिक होती है कंप्यूटर वाले माउस की. ठीक है. सो ये जो क्लिक्स होती हैं दे आर आल्सो यूज्ड एज मीनिंगफुल साउंड्स. ठीक है. डू यू यूज एनी ऑफ द क्लिक्स इन योर लैंग्वेज? डू यू यूज इट फॉर, यस, पर्टिकुलरली इन विलेजेस. दी साउंड्स, ये जो हैं क्लिक्स, उनकी आवाज़ जो है वो बेसिकली क्लिक्स की तरह ही होती है और डिफरेंट आर्गन्स के ज़रिए आप प्रोड्यूस कर सकते हैं. ये जो अभी मैंने क्लिक प्रोड्यूस की है दैट वाज लेटरल क्लिक, साइड से हम प्रोड्यूस करते हैं. और इसी तरह एल्वीलर रीच से भी प्रोड्यूस की जाती है. ठीक है. दीज आर कॉल्ड क्लिक्स. हमारी तरफ जो है ये क्लिक्स बहुत कम इस्तेमाल होती हैं, लेकिन अफ्रीकन जो लैंग्वेजेस हैं तो उसमें ये जो क्लिक्स हैं दे आर यूज्ड एज मीनिंगफुल वर्ड्स. तो क्लिक्स में भी आप यही देख रहे हैं कि एयर को हम अंदर की तरफ ले जाते हैं इंस्टेड ऑफ पुशिंग इट आउट. तो उसमें भी यही जो इनग्रेसिव मैकेनिज्म है इसको इस्तेमाल किया जाता है. क्लिक्स समझ आई है ना कि किस तरह से हम प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. सो डिफरेंट आर्गन्स को इस्तेमाल, इवन बोथ जो लिप्स हैं उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह. ठीक है. दैट इज आल्सो अ क्लिक, दैट इज बाइलेबियल क्लिक सो टू से. तो जिन आर्गन्स को आप इस्तेमाल करते हैं उसी के लिहाज से आप डिफरेंट क्लिक्स जो हैं उनको नेम कर सकते हैं, जस्ट लाइक एल्वीलर क्लिप एंड लेटरल क्लिप जो साइड से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. ओके. सो क्लिकिंग जो साउंड्स होती हैं बेसिकली दे आर आल्सो इनग्रेसिव साउंड्स. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू मैकेनिज्म्स. यहाँ तक समझ आई है ना? ठीक है. ओके. इसी तरह से हमने जब आर को हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, तो हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेंट है इन इंग्लिश, दैट इज एन अप्रॉक्सीमेंट. ठीक है. आर याद है ना, आर वाली साउंड इन इंग्लिश. सो दैट इज एन अप्रॉक्सीमेंट, वॉइस्ड अप्रॉक्सीमेंट. And if you remember, I told you that that is the sound that we don't have in our languages. हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है उर्दू है या सराइकी पश्तो वगैरह है, तो उसमें हमारे पास अप्रॉक्सीमेट नहीं है. ठीक है. सो व्हाट वी हैव इन आवर लैंग्वेज, ठीक है ना, ये जो है हमारे पास एल्वीलर अप्रॉक्सीमेंट है. हम जो रे इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? रे साउंड. So there is difference between R and Ray. Keep it in mind. ठीक है. आप भूल गए हैं. We had discussed that the sound which we use is an alveolar tap. It's not an approximate. Approximate में क्या होता है कि you keep a wide passage open. So हम क्या करते हैं कि हमारी जो टिप ऑफ द टंग है इट टैप्स आवर एल्वीलर रीच. टैप जैसे थपकी देना. ठीक है. तो इफ़ यू से र, ठीक है, तो आप देखते हैं कि एल्वीलर रिज और जो आपकी टंग है उसके दरमियान क्या पैसेज ओपन है या यहाँ पर हम एयर को ब्लॉक करते हैं? क्या आपके ये दोनों आर्गन जो हैं आपस में टच कर रहे हैं या नहीं? रा.
कर रहे हैं ना, ठीक है। सो वेरी शॉर्ट, फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हमारी असल में जो है ये अप्रॉक्सीमेट है, यानी आइडियली जो इंग्लिश का आर है तो उसमें आपके ये दोनों ऑर्गन्स जो हैं दे शुड नॉट टच, ठीक है। आपकी टंग जो है वो एल्विलर रीज को टच नहीं करनी चाहिए, पैसेज जो है वो बिल्कुल ओपन होना चाहिए, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट्स में क्या होता है कि आपके पास जो एयर पैसेज होता है वो बिल्कुल ओपन होता है। तो दोनों जो ऑर्गन्स हैं आपके, यानी टिप ऑफ द टंग एंड एल्विलर रीज, इनको आपस में टच नहीं करना चाहिए, ये अप्रॉक्सीमेट है। तो इंग्लिश हमारे लिए अप्रॉक्सीमेट ये बोलना जो है बहुत मुश्किल है। ट्राई टू से इट विदाउट योर टिप ऑफ द टंग टचिंग योर एल्विलर रीज। क्या कर देखें, कह सकते हैं? Yes, ठीक है। अगेन हम क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारी लैंग्वेज में साउंड नहीं है। सो इंग्लिश में ये अप्रॉक्सीमेट है। हमारे पास जो साउंड इस्तेमाल होती है, सो दैट इज अ डिफरेंट वैरायटी एंड दैट इज कॉल्ड एल्विलर टैप। So that's the difference between alveolar approximate, which we use in English, and alveolar tap, which we use in our languages, just like Urdu, Saraiki, Pashto, and even in Scottish English, we use this alveolar tap. जो स्कॉटिश वैरायटी है या डायलेक्ट है इंग्लिश का, तो उसमें भी ये टैप साउंड इस्तेमाल की जाती है। इसका ये सिंबल इस तरह आप बनाएंगे, यानी आर बना दें छोटा और उसके ऊपर ये वाला वो नहीं होना चाहिए, जबकि अप्रॉक्सीमेट के लिए आप उल्टा छोटा आर जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो alveolar approximant, alveolar tap, and there is also a third variety of the same sound, जिसके लिए हम छोटा आर इस्तेमाल करते हैं सिंबल के तौर पर, जो नॉर्मल छोटा आर होता है, and that is called trill. alveolar trill. अगेन ट्रिल्स जो हैं वो भी बहुत थोड़ी जो लैंग्वेजेस हैं दुनिया की उनमें इस्तेमाल होती हैं। जो स्टैंडर्ड हमारे पास इंग्लिश है ऑब्वियसली उसके अंदर ये इस्तेमाल नहीं होती है, लेकिन कुछ जो वैरायटीज़ हैं फिर वही चीज़ है, स्कॉटिश जो वैरायटी है जैसे, वहाँ पर हम इस ट्रिल को इस्तेमाल करते हैं। अब ट्रिल में हमारे पास क्या होता है कि साउंड जो है उसमें आपके दो जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, यानी टिप ऑफ द टंग इन्वॉल्व है और एल्विलर रिज इन्वॉल्व है। सो इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग इट, इंस्टेड ऑफ कीपिंग देम ओपन, यहाँ पर हम ओपन रख रहे थे, यहाँ पर जो है उसे बंद कर रहे थे, टैप कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या होता है कि वन ऑर्गन कीप्स टचिंग द अदर ऑर्गन कंटिन्यूअसली, ठीक है। टंग जो है वो एल्वियोलर रिज को टच करती है, एयर प्रेशर जो है वो बिल्ड होता है पीछे से और इनको ओपन कर देता है। फिर दोबारा जो वो एयर रिलीज हो जाती है तो दोबारा से टंग जो है एल्वियोलर रिज के साथ मिल जाती है, फिर प्रेशर डेवलप होता है, इनको ओपन कर देता है, और इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो जारी रहता है, ठीक है। सो सच टाइप ऑफ साउंड इज कॉल्ड ट्रिल। Do you know any trill uh, in your language which you use? Any other trill? It may not be alveolar trill. Remember जिसके अंदर मतलब इवन लिप्स को अगर देख लें कि कोई ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे लिप्स जो हैं कंटिन्यूअसली खुले बंद हो इस तरह से। यस, एनी साउंड, it may not be any meaningful sound. Sometimes we do use meaningless sound as well in our language. Yes, it's difficult to produce. कुछ ऐसा पहले पेप्सी का एक ऐड आया करता था, और पेप्सी का था या कोका कोला का, तो उसमें मतलब वो ऐड दिखाते थे तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली ठंडा ड्रिंक जो है वो बंदा पीता है और फिर वो कहता है ब्र, इस तरह की आवाज़ जो है। डू यू रिमेंबर इट? ठीक है, आई एम अनेबल टू प्रोड्यूस इट बट वी डू यूज़ सच टाइप ऑफ साउंड। तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो लिप्स हैं
वो इसी तरह से खुलते हैं बंद होते हैं, खुलते हैं बंद होते हैं। तो इसको हम ट्रिल साउंड कहते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये जो है आर जो है वो ट्रिल के तौर पर इस्तेमाल होता है इन सम वैरायटीज ऑफ इंग्लिश। सो दीज आर थ्री डिफरेंट साउंड्स, और उनके लिए हम फोनेटिक सिंबल्स भी डिफरेंट इस्तेमाल करते हैं। बट रिमेंबर, इन स्टैंडर्ड इंग्लिश वी यूज अप्रॉक्सीमेट, वी डू नॉट हैव टैप और ट्रिल इन स्टैंडर्ड इंग्लिश। टैप जो है वो हमारी लैंग्वेज के अंदर पाई जाती है, ट्रिल जो है वो कुछ लैंग्वेजेस इंग्लिश की वैरायटी में इस्तेमाल होता है, हमारे यहाँ भी उसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही तो आप अभी बता सकते हैं। यस। नो, इन सारों के अंदर इग्रेसिव मैकेनिज्म ही इस्तेमाल हो रहा है। वो मैंने आपको बताया था ना कि जो इनग्रेसिव है वो सिर्फ चंद एक लैंग्वेजेस के अंदर ही इस्तेमाल होता है। तो ये सारी साउंड जो है, मैकेनिज्म जो है उसमें इग्रेसिव ही इस्तेमाल हो रहा है। ओके, सो वी कम टू वॉल साउंड्स। ओके, सो कॉन्सोनेंट साउंड्स के लिए हम डिफरेंट पैरामीटर्स इस्तेमाल करते रहे हैं कि फॉर एग्जांपल प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, वॉइस साउंड है, वॉइसलेस साउंड है। तो जो वाउल साउंड्स हैं उसके लिए डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। वाउल साउंड्स में बुनियादी तौर पर दो चीज़ें जो हैं वो अहमियत रखती हैं। वन इज़ द पोजीशन ऑफ योर टंग, and the other is the shape of your lips. ठीक है, ये दो चीज़ें जो हैं इनको हम देखेंगे जब हम वाउल साउंड्स को प्रोड्यूस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं पोजीशन ऑफ टंग को। तो हम ये देखते हैं कि किसी भी वाउल साउंड को जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो उस वक्त आपकी टंग की क्या पोजीशन होती है। टंग की जो पोजीशन है वो इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू थिंग्स। वन इज द हाइट ऑफ योर टंग and the other is the length of the tongue. So as you know that our tongue keeps moving in our mouth all the time, जितने भी हम आवाज़ें बोल रहे होते हैं तो टंग जो है मुसलसल मूव करती रहती है। बाकी सारे आर्गन जो है वो इतनी कंटिन्यूसली मूव नहीं करते जितनी हमारी टंग मूव करती है। हाइट से हमारी क्या मुराद है कि जब भी हम किसी साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वॉल साउंड को, तो आपकी जो टंग है क्या वो आपके अपर जा के करीब है या लोअर जा के करीब है। ठीक है, सो दैट इज द हाइट ऑफ योर टंग। या यूं कह लें कि आपकी जो अपर एल्वीलर रीज है, ठीक है, उसके करीब है, या आपकी जो लोअर एल्वीलर रीज है उसके करीब है। ठीक है, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल जब हम कहते हैं ई, ई दैट इज अ वॉल साउंड। ठीक है, सो जब हमने कहा ई तो आपकी टंग जो है उस हाइट के एतबार से कहाँ पर है? यस, ऊपर है या नीचे? ऊपर है। ठीक है, अपर जो जा है वो उसके करीब है। सो ऐसे वॉल्स जिनमें हमारी टंग जो है वो ऊपर वाले जॉ के करीब होती है, सच वॉल्स आर कॉल्ड हाई वॉल्स। हाई वॉल्स इन विच द पोजीशन ऑफ टंग इज हाई, सो ऐसे वॉल्स को हम हाई वॉल्स कहते हैं।
just like E. Now make a comparison of this sound with the sound that we have in words like yes. कौन सी साउंड है यहाँ पर? वॉल साउंड कौन सी है? अब दोनों का कंपैरिजन करें, ई ए, यस। तो जब हमने ये वाली साउंड कही है ए, आपकी पोजीशन ऑफ टंग क्या है? हाइट के एतबार से लो है, ठीक है। तो ऐसे वॉल्स के जिनमें पोजीशन ऑफ टंग जो है हाइट के एतबार से वो नीचे होती है, सच वॉल्स आर कॉल्ड लो वॉल्स। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन हाई वॉल्स एंड लो वॉल्स। The other thing about the position of tongue is its length. Length से हमारी क्या मुराद है कि whether our tongue is completely stretched, ठीक है, outwards, पूरी तरह stretched है, or it is curved backwards. सिंपल टर्म में आगे की तरफ है या पीछे की तरफ है, ठीक है। So obviously जब आपकी टंग जो है completely stretched होगी, it would be near your front teeth. teeth जो है अपर टीथ है या लोअर टीथ, ठीक है, उनके करीब होगी। जब वो completely आप स्ट्रेच करते हैं तो तकरीबन आपके टीथ जो हैं उनको टच करती है या उनसे भी इवन आगे जो है वो जा सकती है, ठीक है। और जब बैक होगी तो आप क्या करते हैं कि टंग को स्ट्रेच करने की बजाय उसे कर्व कर देते हैं, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ अगर स्ट्रेच होगी तो ऑब्वियसली वो पूरी तरह से आगे की तरफ होगी। जब आप उसे कर्व कर देते हैं, ठीक है, तो वही जो बॉडी है टंग की ऑब्वियसली वो ऊपर की तरफ उठ जाती है और वो पीछे की तरफ हो जाएगी, ठीक है ना। सो कंप्लीटली स्ट्रेच करने की बजाय आप उसे पीछे की तरफ कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने कहा था ई, तो जब हमने कहा ई, इज योर टंग कंप्लीटली स्ट्रेच और नॉट? इट इज स्ट्रेच। कौन से पार्ट आपकी टिप ऑफ द टंग जो है वो तकरीबन कहाँ तक पहुंच रही है व्हेन यू से ई? एल्विलर रिज या टीथ, ठीक है, तकरीबन यहाँ तक हमारी टिप ऑफ द टंग जो है वो पहुंच रही है। तो दैट यू आर कंप्लीटली स्ट्रेचिंग इट। नाउ कंपेयर इट विद द साउंड ऊ, ई ऊ। यस, अब पोजीशन कहाँ पर है? जब व्हेन यू से ऊ, यस, लेंथ के एतबार से ई ऊ। जब हम ई कहते हैं तो टंग जो है आगे की तरफ स्ट्रेच है, ठीक है, टिप ऑफ द टंग तकरीबन एल्विलर रिज को टच कर रही है। व्हेन यू से ऊ तो आपकी जो टंग है इट रिट्रैक्ट्स बैकवर्ड्स, ठीक है, वो पीछे की तरफ आप जो है उसे खींच लेते हैं। ई ऊ, समझ आ रही है? ई ऊ, आप आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं फिर उसे पीछे की तरफ खींच लेते हैं। सो ऐसे वॉल्स के जिसमें आपकी टंग जो है वो पोजीशन बिल्कुल आगे की तरफ होती है, स्ट्रेच्ड होती है, उनको हम फ्रंट वॉल्स कहते हैं। और ऐसे वॉल्स के जिसमें पोजीशन ऑफ टंग जो है वो पीछे की तरफ होती है, सो सच वॉल्स आर कॉल्ड बैक walls. So that's the difference between front walls and back walls. डिफरेंस समझ आया ना फ्रंटनेस और बैकनेस के अंदर? तो ये दो जो चीज़ें हैं टंग की पोजीशन के एतबार से, इनको हम चेक करेंगे कि टंग की हाइट क्या है, क्या वो हाई है पोजीशन उसकी या लो है, और टंग की लेंथ क्या है कि वेदर वो फ्रंट में है, फ्रंट पार्ट ऑफ द माउथ में है, या फिर वो बैक पार्ट ऑफ द माउथ के अंदर है। तो एक चीज़ हमारे पास ये हो गई जब हम वॉल्स को डिस्कस करेंगे। द सेकेंड थिंग इज द शेप ऑफ योर लिप्स, कि लिप्स की हमारे पास क्या शेप बन रही है। शेप से हमारी क्या मुराद है? अगेन हम उसी वॉल को डिस्कस करेंगे
जब आप कहते हैं ई, ई, ठीक है, इसमें देखें कि मेरे जो लिप्स हैं उनकी शेप क्या हो रही है, ई, ठीक है। एंड व्हेन आई से ऊ, राउंड शेप, ठीक है। सो अगेन वेदर योर लिप्स आर स्ट्रेच्ड, ठीक है, तो उसमें वो बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं, उनकी जो शेप है वो राउंड नहीं होती है। व्हेन यू से ऊ, तो हमारे शिप्स लिप्स जो हैं वो राउंड शेप के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे वाउल्स के जिनमें हमारे लिप्स जो हैं वो राउंड शेप में होंगे उनको हम राउंड और राउंडेड वाउल्स कहते हैं। और जिनके अंदर लिप्स जो हैं वो राउंड नहीं होते, दीज आर अनराउंडेड वाउल्स। Rounded vowels and unrounded vowels. So it depends upon the shape of your lips. ओके, अब हम इन्हीं वॉल्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहली जो चीज़ है जो हमें वॉल्स के बारे में जाननी चाहिए, इट्स द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट वॉल्स एंड लॉन्ग वॉल्स। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं वी हैव टू वर्ड्स बिट एंड बीट। एक और चीज़ के स्पेलिंग जो है उसको इग्नोर करने की कोशिश करें। सो बीट, इसके अंदर हमारे पास स्पेलिंग में दो वॉल्स आ रहे हैं, बट एक्चुअली इट इज़ वन साउंड, ई, इजंट इट, एक ही साउंड है ना, ठीक है। सो स्पेलिंग जो है वो आपको मिसलीड करती है। तो दैट इज़ वन वॉल साउंड। जिस तरह यहाँ पर हमारे पास एक ही वॉल साउंड है, तो यहाँ पर भी एक ही वॉल साउंड है। सो यहाँ पर जो साउंड है इट इज़ इक, बिट, इक साउंड है, और वहां पर है ई, राइट। सो कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ वॉल्स, इक, ई, इक दैट इज वेरी शॉर्ट साउंड, ई दैट इज लॉन्ग साउंड, ठीक है, समझ आ रही है ना बात की। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट वॉल्स एंड लॉन्ग वॉल्स। And remember that only vowel sounds can be long. सिर्फ vowel sounds जो हैं वो long हो सकती हैं। Consonant sounds जो हैं they can never be long. Consonant sounds हमेशा short sounds ही होती हैं। You cannot make them longer. ठीक है ना? For example यहाँ पर जो consonant sound है ब, ठीक, तो क्या इसे लंबा किया जा सकता है? बी जो साउंड है, अगर आप बी कहते हैं तो असल में आप आगे जो वाउल आ रहा है ब के उसको लॉन्ग कर रहे हैं। जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनको लंबा नहीं किया जा सकता है। ओनली वाउल्स हैव दिस क्वालिटी दैट दे कैन बी ड्रॉन लॉन्गर, उनको लॉन्ग किया जा सकता है। कॉन्सोनेंट साउंड जो है हमेशा वो शॉर्ट ही रहेंगे, उनको लंबा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट वाउल्स एंड लॉन्ग वाउल्स, ठीक है। इसी तरह से और भी हमारे पास मिसालें जो हैं वो हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल पुट, एंड वी हैव पूल, ठीक है। तो पुट यहाँ पर शॉर्ट साउंड है ओ, और वहाँ पर है ऊ, पूल, ठीक है, दैट इज उ एंड ऊ। तो ऊ साउंड जो है ऑब्वियसली दैट इज लॉन्गर। सो ये हमारे पास शॉर्ट वॉवल है और ये हमारे पास जो है वो लॉन्ग
वाउंड होता है। तो ये डिफरेंस आपके जहन के अंदर क्लियर होना चाहिए। तीसरी जो चीज़ है, इट इज़ डिफ्थोंग। अब डिफ्थोंग में क्या होता है कि यू कैन सिंपली से दैट इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वाउल साउंड्स। ठीक है, जब आप दो वाउल साउंड्स को मिला देते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफ्थोंग। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव द वर्ड हियर। ठीक है, सुनने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है हियर। सो अगेन इन स्पेलिंग यू आर यूजिंग टू वाउल्स हियर। ठीक है, यहाँ पर भी हम स्पेलिंग में दो वाउल्स इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन आवाज़ एक ही थी, ई। एक ही कोई आवाज़ नहीं आ रही, इट वॉज जस्ट ई। ठीक है, यहाँ पर जो दो वाउल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, दे आर टू डिफरेंट वाउल्स। सो यहाँ पर ये जो साउंड है, इट इज बेसिकली ईया, ई आ, इस तरह है या नहीं? ठीक है, दो वाउल साउंड्स को मिलाकर आप पढ़ रहे हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल डिफ्थोंग। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल वी हैव द वर्ड लाइक पुअर। अब यहाँ पर भी आप देखें कि दो वाउल साउंड आ रही हैं। कौन सी दो वाउल साउंड है? उ आ। ठीक है, पुअर, सो दैट इज उ आ। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वाउल साउंड्स इज कॉल्ड अ डिफ्थोंग। ठीक है, अगेन मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि टर्म्स जो है उनको याद रखें। ठीक है, वो आपसे नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली यही टर्म्स जो हैं वो आपके टेस्ट के अंदर आती हैं। सो यू शुड अंडरस्टैंड देम एंड कीप देम इन योर माइंड एज वेल। ओके, सो इनकी तरफ हम दोबारा आएंगे। फिलहाल कैन यू अगेन इरेज इट। माउथ के अंदर जो आपको स्पेस अवेलेबल है फॉर प्रोड्यूसिंग वॉल साउंड्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वॉल स्पेस। जो आपको ये ओरल कैविटी है ना हमारी, इसके अंदर जो स्पेस आपको अवेलेबल है, यानी जहाँ पर आपकी टंग जो है ऊपर नीचे आगे पीछे हरकत कर सकती है, दैट स्पेस इज कॉल्ड वॉल स्पेस, यानी वॉल की प्रोडक्शन के लिए जो इस्तेमाल होती है। इसी स्पेस को हम रिप्रेजेंट करेंगे suppose that is the space that is available to you for producing vowel sounds, that is your oral cavity। ठीक है, ये जो है that is the back of your mouth। ठीक है, वो बैक साइड हो गई हमारे पास जो वीलम की तरफ है, that is the front of your mouth। ठीक है, आगे की तरफ जो एल्विलर रिज है या हमारे लिप्स हैं, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है तो आगे की तरफ। इसी तरीके से दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ योर माउथ, सो दैट इज हाई, एंड दैट इज द लोएस्ट, ये जो नीचे वाला हमारा जॉ है, ठीक है, ये ऊपर वाला जॉ हो गया। सो इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारी जो टंग है वो किस तरीके से मूव कर रही है और उसकी पोजीशन क्या होती है। सो द फर्स्ट vowel sound that we have is in words like, for example, peat।
So what kind of vowel sound do we have here? Long vowel. E. ठीक है, so that is a long vowel. It is represented by this symbol, छोटा आई और साथ में दो डॉट्स. So that is E. ठीक है, तो स्पेलिंग पर ना जाए, स्पेलिंग डिफरेंट हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव द सेम साउंड इन पील. तो जब आप पील कहते हैं छिलना, ठीक है, तो उसके अंदर भी यही वाली साउंड मौजूद है. इसी तरीके से बीट जैसे हमने कहा था, तो वहाँ पर भी यही साउंड मौजूद है. ठीक है, कील, उसके अंदर भी यही साउंड है. सीट, यहाँ पर भी यही साउंड है. तो स्पेलिंग को ना देखें, साउंड को देखें. सो द ई साउंड, इट्स द ई साउंड. ओके, अगर आप जो टंग की हाइट है उसको देखें तो ये कहाँ पर है? यस, हाईएस्ट जो पॉइंट है हमारे पास, आपकी टंग यहाँ पर है. ई, तो टंग जितनी ऊपर हो सकती है उतनी ऊपर है. सो वी वुड कॉल इट, हाइट के एतबार से हम कौन सा वॉल कहेंगे? हाई वॉल. इट्स हाई वॉल क्योंकि टंग जो है वो बहुत ज़्यादा हाइट पर है. ठीक है, ओके. टंग की दूसरी चीज़ जो हमने देखनी है फ्रंटनेस. सो फ्रंटनेस के एतबार से देखें तो टंग कहाँ पर है आपकी? एल्विलर के करीब है. सो यस, इट इज़ ऑन फ्रंट. सो ऐसे वॉल को हम क्या कहते हैं? फ्रंट वॉल. ठीक है, सो इट्स अ हाई फ्रंट. ठीक है, टंग के एतबार से हमने दोनों चीज़ें देख ली. तीसरी चीज़ थी लिप्स. तो इज इट राउंडेड और अनराउंडेड? अनराउंडेड. ई जब आप कहते हैं तो बाछें दोनों जो है वो खुली हुई होती हैं. तो दैट इज अनराउंडेड वाउल. ओके, इसकी समझ आई है ना? सो वी वुड लेबल इट एज हाई फ्रंट अनराउंडेड वाउल, जो ई वाउल है हमारे पास. नेक्स्ट जो वाउल साउंड हमने देखनी है, ठीक, ये थी हमारे पास पीट. नेक्स्ट है वर्ड लाइक पिट. कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वाउल साउंड्स? शॉर्ट है. ठीक है, पहला वॉल जो है दैट वाज ई. दिस वॉल इज ई. ई. ठीक है, सो अगर हम अगेन हाइट के एतबार से देखें, टंग की जो हाइट है, सो वेयर इज इट? एंड अगेन एक और चीज़ कि हाइट और लेंथ जो है वो आपको पता चलेगी जब आप एक वॉल को दूसरे से कंपेयर करेंगे. सो पहले वॉल के से अगर आप कंपेयर करें इसे, ये जो अभी वाला है ई, तो हाइट जो है वो इसके मुकाबले में कम है या ज़्यादा है? कम है. ई जब आप कहते हैं, डज योर टंग मूव अ लिटिल लोअर और नॉट? कंपैरिजन करें ई. तो आपका जो ब्लेड ऑफ द टंग है एंड टिप ऑफ द टंग है, इट डिप्स अ लिटिल. ठीक है ना, जरा सा नीचे की तरफ हमारे पास आता है. तो अगर आप माउथ के अंदर इसकी पोजीशन देखें, ठीक है, तो ये ई के मुकाबले में ज़रा सा नीचे आएगा. दूसरी चीज़ कि जो आपके पास लेंथ है टंग की, फ्रंट और फ्रंटनेस और बैकनेस का जो हम जिक्र कर रहे थे, तो अगेन इसके साथ कंपैरिजन करें पहले वाउल के साथ और फिर बताएं कि आपकी टंग जो है वो लेंथ के एतबार से उससे आगे है, पीछे है, कहाँ पर है? नीचे तो हो गई ना, आगे और पीछे की बात कर रहे हैं. पीछे की तरफ, थोड़ा सा पीछे की तरफ. अगेन ये डिफरेंस जो, इसीलिए मैंने आपको कंपैरिजन का कहा है. जब तक आप कंपैरिजन नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी. सो इट मूव्स अ लिटिल बैकवर्ड्स.
इट मूव्स अ लिटिल डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। ठीक है, इसके मुकाबले में हमारी टंग जो है वो ज़रा सी नीचे की तरफ आती है और ज़रा सी पीछे की तरफ जाती है। सो अगर हम इसको देखें तो तकरीबन यहाँ पर ये जो वाउल है हमारे पास आ रहा है। तो आप देखें कि ज़रा सा उस वाउल के मुकाबले में नीचे हम आए हैं और ज़रा सा पीछे की तरफ भी गए हैं। इसी ये लकीर जो है मैंने तिरछी बनाई है, क्योंकि जैसे जैसे हम वाउल को डिस्कस कर रहे हैं तो हम पीछे की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। So that's the difference between E and I. Clear? Okay, next वाउल की तरफ हम जाते हैं। पेट, ठीक है, पीट, पिट, पेट। सो ये जो यहाँ पर साउंड है दैट इज ए साउंड, इजंट इट? ठीक है, पेट जब हम कहते हैं तो दैट इज ए साउंड। सो अब जो है तीन आपके पास साउंड आ गई हैं, आप ज़्यादा कंपैरिजन कर सकते हैं। सो ट्राई सेइंग ई, ई, ए। सो लेंथ के एतबार से, सॉरी पहले हाइट को डिस्कस, हाइट के एतबार से ये जो थर्ड वाउल है, ठीक है, ये इन दोनों से ऊपर है, नीचे है, कहाँ पर आएगा? नीचे आएगा। ठीक है, ई, ए, ए। अब आपकी टंग का जो वो जो टिप है और फ्रंट वाला पोर्शन है, ब्लेड जो है, ठीक है ना, वो नीचे की तरफ डिप कर रहा है ज़रा सा। तो इन दोनों के मुकाबले में हमारी टंग जो है वो ज़रा सी नीचे की तरफ आती है। द सेकेंड थिंग इज फ्रंटनेस। ठीक है, सो अगेन इन दोनों के साथ कंपैरिजन करें और जब आप ए कहते हैं तो आपकी टंग जो है कहाँ पर जा रही है? बैक, ठीक है, पीछे की तरफ जो है वो मूव कर रही है। सो अगर हम माउथ के अंदर पोजीशन देखें इसकी, तो तकरीबन ये, अच्छा इसके लिए सिंबल ये इस्तेमाल किया जाता है उल्टा, ये जो तीन होता है, ठीक है। सो ई, ए, ठीक है, तो दीज आर थ्री डिफरेंट वाउल साउंड्स। और इनके सिंबल्स जो हैं वो भी साथ साथ जहन के अंदर रखते जाएं, क्योंकि स्पेलिंग से कभी भी आपको प्रोनाउंसिएशन का पता नहीं चल सकता है। ठीक है, सो ए, दैट इज द सेम साउंड दैट वी हैव इन 10। इसके अंदर भी यही साउंड आ रही है ना, ठीक है। बेट, सेट, मेट, ठीक, तो इन सारों के अंदर यही ए वाली साउंड आ रही है। तो जहाँ पर भी ये वाली साउंड होगी उसके लिए ये सिंबल इस्तेमाल होता है। यस, ठीक है। अब लेबल भी साथ साथ ऑब्वियसली हम करते जाएंगे। अगर आप हाइट के एतबार से देखें, ठीक है, अगर हम इसे तकरीबन जो है वो मिडल इनकी हम जो है लकीरें लगा लें, ठीक है, तो आपका मोर और लेस जो है यहाँ पर मिडल जो है वो आ रहा है। सो मिडल वाले पोर्शन से ये दोनों जो वाउल्स हैं वो ऊपर है ना, ठीक है। मिडल वाले पोर्शन से दोनों आपके माउथ यानी हाइट के एतबार से अगर आप मुंह का दरमियाना हिस्सा देखें तो ये दोनों वाउल्स जो हैं वो उससे ऊपर आ रही हैं। ठीक है, ये वाउल जो है तकरीबन दरमियान में आ रहा है हाइट के एतबार से। फ्रंटनेस के एतबार से देखें तो भी अगर हम माउथ को ये दरमियान में एक लकीर लगा लें, यानी फ्रंटनेस के एतबार से अगर आप देख रहे हैं तो फिर भी ये सारे वाउल्स जो हैं वो इस दरमियानी लकीर से आगे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, सो लेबल जो है हमारे पास वो तकरीबन मोर और लेस सेम ही रहेंगे। सो दैट इज आल्सो हाई वाउल, फ्रंट वाउल। अच्छा, राउंडनेस हमने नहीं देखी है। सो इक जब आप कहते हैं राउंड है या अनराउंडेड है? अनराउंडेड, ठीक है। ई, ठीक है, so it is again unrounded. Make it compare it with oo,
ठीक है, ऊ दैट इज कंप्लीटली राउंडेड। ओके, इसी तरीके से अगर हम ये वाला जो वाउल है, तो तकरीबन ये हमारे पास जो है वो मिडल में आता है। यू कैन ऑल्सो कॉल इट हाई, मिडल, ठीक है, हाई भी है, मिडल भी है, क्योंकि फिर भी लो तकरीबन नहीं है। एंड इज इट राउंडेड और अनराउंडेड? अनराउंडेड। लिप्स जो है वो राउंड पोजीशन में नहीं है। ओके, सो वी मूव टू आवर नेक्स्ट वाउल साउंड। ठीक है, व्हाट इज दिस साउंड? ए, जस्ट लाइक वी हैव इन कैट, ठीक है ना, बैट। तो इनके अंदर जो साउंड इस्तेमाल हो रही हैं, बैट, सो दैट इज ए साउंड। अगेन अगर आप हाइट को देखें तो हाइट के एतबार से इन सारों के साथ कंपैरिजन करें तो आपकी टंग कहाँ पर आ रही है? बिल्कुल निचला जो आपका जॉ है वहाँ पर तकरीबन टच ही कर रही है। ठीक है, सो हाइट के एतबार से सबसे ज़्यादा ये लो वाउल है। फ्रंटनेस के एतबार से देखें, ए, थोड़ी सी आपकी टंग जो है वो पीछे की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, बट स्टिल पीछे की तरफ तो हम गए हैं, लेकिन अगर मुंह के दरमियानी हिस्से से देखें तो आप दरमियानी हिस्से से आगे है टंग या पीछे की तरफ है? आगे, स्टिल ये जो है आगे की तरफ है, अगरचे हम पीछे मूव कर रहे हैं। इसके लिए जो हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं, छोटा ए जो प्रिंटेड इंग्लिश में हम लिखते हैं उस तरह से लिखें और उसके साथ मिलाकर छोटा ई लिखें। सो दैट इज ए साउंड। अब इन सारों का कंपैरिजन करके देखिए, ई, ए, ए। So you can see that your tongue is gradually moving downwards and backwards. ठीक है, तो नीचे की तरफ मूव कर रही है और पीछे की तरफ जो है हमारी टंग वो मूव कर रही है। यहाँ तक समझ आ रही है ना? क्लियर हो रहा है? सो ये भी हमारे पास लो, फ्रंट, अनराउंडेड वाउल हो जाएगा। ठीक है, सो वी हैव द लोएस्ट वाउल सो फार। हमारे पास सबसे ज़्यादा जो लो वाउल है वो यही होगा। Alright, we move to our next vowel sound. So जो साउंड हमने यहाँ पर डिस्कस की थी, पूल, ठीक है, तो कौन सी साउंड है ये? साउंड कौन सी है वैसे बोलने में? ऊ, ठीक है, सो दैट इज ऊ साउंड। आमतौर पर डबल ओ के साथ लिखा जाता है इसे। इसके लिए जो हम सिंबल इस्तेमाल करेंगे, छोटा यू लिखें और साथ में दो डॉट्स। हाँ, ये जो लॉन्ग वॉल्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ना, ये भी लॉन्ग वॉल था तो उसके साथ भी दो डॉट्स लगाए हैं, ये भी लॉन्ग वॉल है। इज इट लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल? ओ, सो दैट इज लॉन्ग। तो ये डॉट्स जो हैं वो आमतौर पर लॉन्ग वॉल्स के साथ लगाए जाते हैं। अब कंपैरिजन अगेन हम करेंगे। पहले जो है वो हम
करते हैं कि वेदर इट इज फ्रंट और बैक, इसके साथ कंपैरिजन करें, ई ओ बैक वॉल, इजंट इट, ठीक है, ई ऊ, तो जब आप ऊ कहते हैं तो आप टंग को पीछे की तरफ खींच लेते हैं, ठीक है, सो ऑब्वियसली इट्स अ बैक वॉल। यस, ठीक है, अगर आप हाइट के एतबार से देखें तो टंग जो है आप पीछे की तरफ रिट्रैक्ट करते हैं तो टंग जो है वो ऑब्वियसली जब वो कर्व होती है तो ऊपर की तरफ उठ जाती है, ठीक है, ऊ, अब देखिए ना, तो टंग जो है उसकी बॉडी कर्व होकर ऊपर की तरफ उठ रही है, सो दैट इज हाई बैक, और लिप्स की पोजीशन क्या है, राउंडेड, सो इट्स अ हाई बैक राउंडेड वाउ, ठीक है, इसका यहाँ पर तकरीबन जो है हमारे पास आएगा, ठीक है, सो ई ऊ, ठीक है, तो इनमें वाहिद इनमें जो डिफरेंस है कि ये जो है फ्रंट है और अनराउंडेड है, और ये जो है बैक है और राउंडेड है, ठीक है, ई मुंह में बिल्कुल जितना आगे तक आपकी जुबान जा सकती है, और ऊ जितना पीछे तक जा सकती है, ठीक है, सो वन ऑफ देम इज अ फ्रंट वॉल, द अदर इज द बैक वॉल। अच्छा, इसका कंपैरिजन हम करते हैं, सो व्हाट इज दिस साउंड, ओ, यस, ठीक है, ऊ ओ, जिस तरह यहाँ पर हमारे पास था ई ई, ठीक है, सो वन ऑफ देम इज द लॉन्ग वॉल, द अदर इज अ शॉर्ट वॉल, सो इट इज ऊ एंड ओ, ठीक, सो अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करें, ठीक है, तो अगर आप फ्रंटनेस और बैकनेस को देखेंगे तो ये वॉल कहाँ पर होगा, ओ, बैक में है, स्टिल इट इज इन द बैक, ठीक है, टंग जो है वो कर्व हो रही है, लिहाजा ये बैक में ही है, ठीक है, हाइट के एतबार से देखें तो कंपैरिजन करें उसके साथ, ओ ओ, जरा सी डिप कर रही है नीचे की तरफ टंग जो है हमारी, ठीक है, तो ऊ जो है इट्स हायर, ऊ उसमें टंग जो है जरा सी फ्लैट हो जाती है, उसका जो कर्व है वो जरा सा नीचे की तरफ हो जाता है, ठीक है, सो बट स्टिल चूंकि हमारे पास ये जो मिडल लाइन है हाइट वाली भी और फ्रंटनेस वाली भी, उन दोनों के एतबार से यहाँ पर हमारे पास जो है ये आ रहा है। समझ आइए ना इनके अंदर जो डिफरेंस है, तो वन ऑफ देम इज अ लॉन्ग वॉल, द अदर इज अ शॉर्ट वॉल, ठीक, नेक्स्ट जो वॉल है हमारे पास, इट इज फाउंड इन वर्ड्स like, so how will we pronounce it, is it a, it's not a, ठीक है, it's not fall, it's fall, ठीक है, समझ आ रही है बात की, it's fall, अगर आप fall कहते हैं तो that is wrong pronunciation, it's the same pronunciation that we have in words like raw, it's not raw, इस तरह है ना, ठीक है, जरा सा ओ वाला एलिमेंट जो है वो उसके साथ शामिल हो जाता है, रॉ, इट्स नॉट कम्प्लीटली ओ, रो भी नहीं है, ठीक है ना, रो जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, या फोल जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, सो जरा सा ओ और आ इसका कम्बिनेशन है सॉर्ट ऑफ, ठीक है, सो इट्स रॉ फॉल, हमें कहने में इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है कि अगेन हमारे पास या तो ओ है या फिर आ है, तो हमारे पास जो वॉल साउंड होते हैं तो या तो आ होता है या फिर ओ होता है, ठीक है, ये जो दरमियानी साउंड है ये हमारे पास नहीं है, तो इसलिए
अक्सर हमारे लोग जो है वो इसे मिस प्रोनाउंस करते हैं। सो इट्स ऑ, ठीक है, ऑ। सो इसका कंपैरिजन करें ऊपर वाली दोनों आवाज़ों के साथ, ऊ, उ, आ, आ, यस, तकरीबन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अगर आप हाइट को देखते हैं, ठीक है, तो ये जो साउंड है हमारे पास, इसका ये सिंबल इस्तेमाल किया जाएगा। तो हमारी टंग जो है वो ज़रा सी मज़ीद नीचे की तरफ होती है एज कंपेयर टू ऊ और उ, ऊ, ओ। टंग जो है मज़ीद थोड़ी सी फ्लैट हो गई, थोड़ी सी मज़ीद नीचे की तरफ हो गई। और अगेन जैसे जैसे टंग जो है वो नीचे की तरफ होगी, तो इसका क्या मतलब होगा, अगर टंग की बॉडी जो है वो कर्व होकर ऊपर उठ गई थी, ठीक है, जैसे हमने ऊ कहा, अब जैसे जैसे टंग सीधी हो रही है, तो ऑब्वियसली जैसे टंग सीधी होगी तो थोड़ा थोड़ा वो आगे की तरफ मूव करेगी ना, क्योंकि वो जो बॉडी थी, जो लेंथ थी हमारे पास, पहले आपने चूंकि उसे कर्व कर दिया, ऊपर की तरफ कर दिया है इस तरह से, ठीक है। अब जैसे जैसे वो सीधी होगी तो ऑब्वियसली वो थोड़ी सी आगे की तरफ बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो जैसे ये वाले जो वॉल्स हैं वो पीछे की तरफ आ रहे थे, ये वाले वॉल्स जो हैं वो थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ जाएंगे। सो इट्स ऑ, फॉल, रॉ, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स जो हैं इनके अंदर इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए जो सिंबल हम इस्तेमाल करेंगे, उल्टा सी, छोटा सी, और ये तो दो डॉट्स जो कि लॉन्ग वॉल के तौर पर, अगेन इट्स अ लॉन्ग वॉल, इजंट इट, ठीक, ओ, सो इट्स अ लॉन्ग वॉल। सो इसके लिए हमारे पास जो है ये सिंबल इस्तेमाल होता है। सो अगेन यू कैन मेक अ कंपैरिजन, ऊ, उ, ओ। सो टंग जो है आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आ रही है और आगे की तरफ जा रही है। इनमें क्या हो रहा था कि नीचे की तरफ आ रही थी और पीछे की तरफ जा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर उल्टा हमारे पास जो है वो हिसाब हो जाएगा, ठीक है। अगेन ये जो आपके पास तीनों वॉल्स हैं, लिप्स की शेप क्या है उनमें, राउंडेड और अनराउंडेड, ओ, 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 राउंडेड। सो लिप्स जो हैं वो राउंडेड हैं। तीनों वॉल्स जो हैं मोर और लेस दे आर हाई वॉल्स या हाई मिडल कह लें, ये दोनों तो हाई वॉल्स ही हैं, ठीक है। और बैक वॉल्स जो हैं ये तीनों बैक वॉल्स हैं, ठीक है। ये जो तीसरा वॉल है इसे आप हाई मिडल कह सकते हैं, यानी हाइट के एतबार से हाई भी है, मिडल भी है, बट ऑल ऑफ देम आर बैक वॉल्स, क्योंकि लेंथ के एतबार से अगर आप दरमियानी लकीर को देखें तो उससे ये तीनों जो हैं वो पीछे की तरफ हैं, लिहाजा ये सारे जो हैं वो बैक वॉल्स कहलाएंगे। ठीक है, काफ़ी आज के लिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you can ask. Clear everything? Okay. So थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो बहुत ही वाजे होते हैं, वॉल्स जो हैं उनमें डिफरेंस बहुत ही थोड़ा थोड़ा है। सिर्फ आपको दूसरे वॉल्स के साथ कंपैरिजन से ही पता चल सकता है कि एक जो वॉल है उसकी पोजीशन माउथ के अंदर कहाँ पर है, टंग की क्या पोजीशन है, और जो हमारे लिप्स हैं उनकी क्या पोजीशन हो रही है। So keep all these things in your mind. Okay, so I'll see you tomorrow.